Hello and welcome to all of you guys. This is आशीष श्रीवास्तव. पाइथन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग इस समय एरे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और एरे टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, राइट. उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट. तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं. सबसे पहले कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस. जैसा कि आप देख पा रहे हो, इंट्रोडक्शन टू numpy, हाउ टू इंपोर्ट numpy पैकेज एंड क्रिएटिंग 1D array थ्रू numpy, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन टू numpy. इंट्रोडक्शन टू numpy इन पाइथन. numpy है क्या? फ्रेंड्स, जैसा कि एरे टॉपिक ऑलरेडी कुछ चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हुई हैं और वहाँ पर आपने 1 डायमेंशनल एरे पर भी काम किया हुआ था, प्रोग्रामिंग की हुई थी, लेकिन वहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ नहीं कर पा रहे थे. क्लियर? तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि टू यूज मल्टी डायमेंशनल एरे, टू वर्क विद अ मल्टी डायमेंशनल एरे यू हैव टू import numpy package, right? And to work with the characters or string values, you can use numpy package, right? तो numpy package का क्या जो है इम्पोर्टेंस है और क्यों यूज होता है, चलिए समझते हैं. numpy is one of the most powerful python library. numpy है क्या? एक most powerful python library है. It is the core library for the scientific computing which contains a powerful n-dimensional array object, right? Actually numpy library में ऐसे बहुत सारे functions हैं जो कि scientific computing में यूज किए जाते हैं. Means scientific जो calculations होते हैं, right, उनको परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर numpy में यूज कर सकते हैं. numpy is an open source numerical python library. जैसे कि आपने ऊपर देखा कि numpy is an open source python library है. numpy contains a multi-dimensional array and matrix data structure. Using numpy you can work with a multi-dimensional array, you know very well. It can be utilized to perform a number of mathematical operations on arrays such as trigonometric, statistical and algebraic routines, right? जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि numpy के जरिए हम कई सारे साइंटिफिक मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. So that thing, by using this package we can perform different types of mathematical operation on array as well as statistical and algebraic routines, right? numpy is an extension of numeric and num array. It is the extension of numeric and num array, right? And the library contains a large number of mathematical. अच्छा, ये तो ऊपर वाला ही दोबारा ये लाइन लिखी हुई है, राइट. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि numpy किस तरीके से इंपोर्ट किया जा सकता है. numpy मॉड्यूल या पैकेज किस तरीके से इंपोर्ट किया जा सकता है, राइट. So you can use 2 methods to import numpy. Clear? numpy दो तरीकों से इंपोर्ट किया जा सकता है. First is import numpy statement and second is from numpy import star, right? As you see, import numpy statement, first statement to import entire numpy module, and the second from numpy import star. Star means all. It means import all the classes, object, variables and functions in the numpy package, from the numpy package, right? So these are the statements through which you can use numpy, you can import numpy, right? So in next slide, creating one dimensional
array using numpy. One dimensional array using numpy. वन डायमेंशनल एरे numpy का यूज करके किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है. You know very well one dimensional array क्या है, right? What is one dimensional array? You know very well one dimensional array is the array in which there are multiple columns and a single row, right? As you see in the example figure, there are more than one columns, column 1, column 2, column 3, column 4, and single array, single row in which there are various values 10, 20, 30 and 40, right? तो इंपोर्ट किस तरीके से परफॉर्म करेंगे भाई. फर्स्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट numpy का यूज करके. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले इंपोर्ट numpy लिखा हुआ है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द array ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट numpy, right, and dot array. Array is a function here of numpy, right, and which you have to write in the square bracket number of elements. Clear? Suppose that कि प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर होगा. यहाँ पर मैं एडिटर विंडो ओपन कर लेता हूँ. ओके, राइट. और यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट एट फर्स्ट वी हैव टू राइट import numpy, right? By using first statement we are just importing numpy package, right? And after that you have to write array name. Suppose that ki array name is empid, right? Empid, and after that you have to write a numpy here, numpy dot array, name of the function dot array, and after that you have to write array function, okay, round bracket, and within the function in square bracket you have to write the number of elements, just like 10, 20, okay, 30, 40 and 50. Clear? And after that, if you want to print all the elements, so you have to write for I in empid, right? And after that you have to write print I, okay, print I, right? तो चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं कि क्या सभी एलिमेंट्स यहाँ पर एक्सेस हो पा रहे हैं. तो कुछ देखिए एलिमेंट्स, अच्छा, ओके, 10, 20, 30, 40 and 50, all the elements are displayed here, right? सो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि numpy के जरिए किस तरीके से आप एक्सेसिंग कर पा रहे हैं. अच्छा, मान लीजिए कि आप कोई एक सिंगल एलिमेंट यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं. सपोज दैट कि आप यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पर आप सिंपली क्या लिखते हैं, empid, राइट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इंडेक्स नंबर सपोज दैट 0, राइट. तो on 0 index the value will be value is 10, so 10 will be printed, okay, something like that, right? तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट इंडेक्सिंग पर आप डिफरेंट वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं. क्लियर? अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे आप पहले यहाँ पर टाइप कोड भी लिखा करते थे, राइट, विदाउट यूजिंग numpy आप यहाँ पर टाइप कोड भी लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको टाइप कोड इस तरीके से किससे लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉमा के साथ में int लिख देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि जितनी भी वैल्यूज हैं वहाँ पर वो सभी वैल्यूज इंटीजर टाइप की हैं. मैं यहाँ पर फॉर लूप दोबारा यूज करूंगा, फॉर I in empid, राइट, एंड आफ्टर दैट you have to print I, right? तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि all the values are displayed here, जितने भी values हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी, और int से आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि सभी values इंटीजर टाइप की है.
अगर आप यहाँ पर इसको नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? इसी तरीके से मान लीजिए कि आप यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज एक्सेस प्रिंट कराना चाह रहे हो, सपोज दैट 10.5, 20.3, राइट, एंड इसी तरीके से 30.6, 40.2 एंड 50.1। क्लियर? तो यहाँ पर आप कॉमा करके फ्लोट लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, तो इससे कोई भी आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप रन कराइए तो प्रोग्राम आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, राइट। अच्छा, अगर आप यहाँ पर फ्लोट लिखते भी हैं तो आपको कॉमा करके फ्लोट लिख दीजिए, राइट, तो सेम टू सेम वही रिजल्ट आपको मिलेगा जो कि आपको पहले मिल रहा था। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए कि आप यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यूज यूज करना चाह रहे हो, राइट, तो कैरेक्टर वैल्यूज जो आप यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप सिंपली कुछ कैरेक्टर्स भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ कैरेक्टर मेंशन कर दे रहा हूँ, राइट। तो सपोज दैट कि आप कुछ कैरेक्टर मेंशन करना चाह रहे हैं तो यू नो सिंगल कोटेशन ए, इसी तरीके से जस्ट पी, इसी तरीके से जस्ट सी, and you have to write here in single quotation T, okay, और suppose that 4 characters here, okay। तो यहाँ पर आप simply characters लिखकर और execute करा दीजिए। तो जैसे ही आप execute कराएंगे तो आपको सभी characters यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर यदि आप string पर काम करना चाह रहे हैं, right, तो सपोज दैट कि यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज लिखता हूँ, मान लीजिए कि इस तरीके से, ओके, और तो ये मैंने कुछ स्ट्रिंग यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो चाहे आप यहाँ पर डायरेक्टली इस पर वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, देखिए आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पर डेटा टाइप इक्वल टू str यूज कर सकते हैं, राइट। और जब आप ये यूज करेंगे ऑटोमेटिकली ये कंसिडर हो जाता है कि ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पर ये यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। यू आर फ्री टू डू, राइट। आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ यूजिंग numpy, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next, second method by using from numpy import, right? From numpy import star means all the thing, means classes, right, objects, functions, everything you are just importing from the numpy. Clear? So अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप और भी देखिए कि जब आप स्टार सेकेंड स्टेटमेंट यूज करेंगे, मीन्स फ्रॉम numpy import star, तो यहाँ पर आपको numpy लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एरे लिखिए, फंक्शन नेम लिखिए एंड प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, राइट। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर मैं दोबारा प्रोग्रामिंग विंडो में आता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करूँगा। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम numpy import star, राइट। और यहाँ पर आप numpy लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आप numpy हटा दीजिए और यहाँ पर कोई भी वैल्यूज आप रख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कुछ इंटीजर वैल्यूज पर काम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यूज लिख देता हूँ, राइट। 10, 20, इसी तरीके से 30, ओके, इसी तरीके से 40, राइट। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर किसी भी वैल्यूज पर काम कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं कि ये आउटपुट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यस, आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर? So this is the second method through which you can use import numpy package, right? तो इस तरीके से आपने देखा कि there are two methods, two syntax actually statements through which you can import numpy package, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay,
Okay guys, तो this was introduction for the NumPy package, right? और अभी NumPy से रिलेटेड और भी कई प्रोग्रामिंग्स हैं, जैसे मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरीके से यूज़ होगा, कैसे यूज़ करेंगे, राइट? प्रोग्रामिंग्स किस तरीके से परफॉर्म होगी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट? एंड आई थिंक ये होल सिनेरियो, होल कॉन्सेप्ट आपको NumPy का समझ में आया होगा, क्लियर? तो यदि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ कहना चाह रहे हो, तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, राइट? ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।